والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر فاضل نوجوان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا احسان الہی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واعظ خوش الحان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی کا خطاب بھی ہونے والا ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر اکبر محترم جناب ملک اعجاز احمد جویا صاحب، نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور برادر اکبر محترم جناب حاجی رشید صاحب، بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب۔ اگرچہ ٹائم تو مجھ سے لیا گیا لیکن اشتہار پہ میرا نام نہیں لکھا گیا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جویاں والوں کی یہ محبت قبول فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ بہرحال ویسے آندے نے بھی اشتہاراں تو بغیر مولوی دا پرچہ نہیں ہوندا، ٹھیک ہے جی، جیڑا کچھ مرضی کہہ کہ چلے جی سانوں کڑا کسے پوچھنا ہے، کیوں بھی بولا۔ بہرحال میں بڑے مختصر وقت کے اندر جو بات آج عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں ذرا کچھ بات آپ کے سامنے کہہ سکوں گا۔ حقیقی بات یہ ہے آج پوری دنیا انتشار کا شکار ہے، پوری دنیا کے اندر جنگ کا سماں ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، چیچنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اور مسلمان ہمیشہ معافی کا پہلو اپناتا ہے۔ میں بڑے مختصر وقت کے اندر معافی کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کے بڑے مقرب، اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور بڑی محبت کرتا ہے۔ معاف کرنے کی صفت جو ہے یہ بڑی اہم صفت ہے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جیسا کہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ایک جنگ کے موقع پر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کافر کو اپنی تلوار کے ساتھ گرا لیا، لیکن اس کافر نے پیارے علی کے چہرے کی طرف تھوکنے کا ارادہ کیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علی
वो तुझे कत्ल करने के इरादे से मैदान जंग में आया था और वो आपकी तलवार के नीचे था, लेकिन फिर आपने उसको माफ क्यों कर दिया? प्यारे अली ने जवाब दिया, पूछने वाले, पहले मैं अल्लाह की रजा के लिए काफिर को कत्ल करने का इरादा रखता था। जब उसने मेरे चेहरे की तरफ थूकने का इरादा किया, मैंने उसको कत्ल करने का इरादा इसलिए तर्क कर दिया और उसको माफ कर दिया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह के अंदर मुझे जाती इंतकाम लेने वाला ना लिख दिया जाए। मैंने उसको माफ कर दिया। और इंसान की ये फितरत अगर माफ करने वाली बन जाए, मैं ये समझता हूं हमारे घरों के अंदर से लड़ाई का खात्मा हो जाएगा, हमारे माशरे के अंदर से फसाद मिट जाएगा, गांव के अंदर, शहरों के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और मुझे प्यारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पोते यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन याद आए। उनका असल नाम भी अली है, लेकिन उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब इबादत करने वालों का सरदार, इबादत करने वालों के माथे का झूमर। ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुजारों का सरदार उनको कहा जाता है। एक दफा, भाई जलसा खराब ना करो, अल्लाह तो जज़ाए खैर अता करे, इस तरह जलसा तो ही नाकाम होना है। बहरहाल फरमाया गया, प्यारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका बेटा है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उनका बेटा है सैयदना हजरत ज़ैनुल आबिदीन। माशाअल्लाह, मेरे मसलक के अजीम तर्जमान, वाइज़े शरीफ बयान, बुलबुले कुरान, मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला स्टेज की जीनत बन चुके हैं। अब मैं इंशाअल्लाह सिर्फ 10 मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ, ताकि उनका फौरी तौर पे खिताब शुरू करवाया जा सके। उनके साथ ही मेरे भाई मोहम्मद उस्मान साहब तशरीफ लाए। मैं उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से जोइयां उतार आमद पर खुशआमदीद कहता हूँ। जो मैं बात कहने लगा था, आइए जरा माफी की अहमियत कितनी ज्यादा है। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन की एक लौंडी, वो ज़ैनुल आबिदीन को वुजू करवा रही है। उसके हाथ के अंदर एक मिट्टी का बर्तन था। जब वुजू करवाने लगी, उसके हाथ से वो बर्तन टूट गया और गिर गया, और उसका एक टुकड़ा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और उनका चेहरा जख्मी हो गया। गुस्सा आ जाना फितरती बात है। आपने गुस्से के साथ अपनी निगाहों को उठाया और फौरी तौर पे लौंडी के जहन में ख्याल आया, आले रसूल के सामने जब कुरान पढ़ा जाए फौरी तौर पे अमली तस्वीर बन जाते हैं। लौंडी ने फौरी तौर पे अपनी जुबान से पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले, गुस्से पर सब्र कर जाने वालों को अल्लाह पसंद करता है। आपने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया और गुस्सा ठंडा हो गया। लौंडी के दिल में ख्याल आया, अभी इसने मुझे माफ कर दिया है, हो सकता है कोई मौका बने और मुझसे बदला ना ले। लौंडी ने अपनी जुबान से पढ़ा, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देने वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है, लौंडी गवाह बन जा, मैं जिस तरह तुझे अब माफ कर रहा हूं, आइंदा ना बदला लेने का वादा भी कर रहा हूं। अब जरा जोइयां उतार के रहने वालों, मैं एक नुक्ते की बात जो समझाने जा रहा हूं वो ये है। लौंडी के दिल में ख्याल आया,
मौका बन चुका है, क्यों ना हो कि मैं इस मौके से फायदा उठाऊं। लौंडी ने अपनी जुबान से पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को बड़ा पसंद करता है, बड़ा प्यार करता है। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की आयत को और इसके मफ़हूम को समझ के जवाब दिया, ऐ लौंडी, मैंने जहां पर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, जहां पर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके तुझे माफ कर दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मैं कुरान की इस आयत पे अमल करते हुए अपनी जुबान से ऐलान कर रहा हूं, ऐ लौंडी, जा आज के बाद मैंने तुझे सारी जिंदगी के लिए आजादी अता कर दी है। वल काज़िमीन अल गैज़, और ये बात याद रखो, आज दुनिया के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज हमारे अंदर सब्र नहीं रहा, बर्दाश्त का मादा नहीं रहा, और उसका नतीजा क्या है? हर गांव के अंदर लड़ाई, हर घर के अंदर फसाद, हर मोहल्ले के अंदर तरह तरह की चीजें पैदा हो चुकी हैं। मुझे याद आया मेरे काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। मेरे आका ने सहाबा इकराम का जमघटा लगा हुआ, मेरे आका कच्ची छत वाली और कच्चे सहन वाली मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। मेरे आका अपने सहाबा के अंदर इस तरह प्यारे लग रहे थे जैसे 14वीं रात का चांद सितारों में प्यारा लगता है। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा, अभी एक आदमी मस्जिद नबवी के अंदर आने वाला है, जिसने दुनिया में जन्नती देखना है उसको देखे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, सहाबा ने अपनी निगाहों को उसके चेहरे के ऊपर डाला, देखा सादा आदमी नमाज पढ़ के वापस चला गया। दूसरा दिन हुआ, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा, अभी एक आदमी मस्जिद में आने वाला है, जिसने दुनिया में जन्नती देखना है उसको देखे। कल वाला बंदा फिर आ गया, सहाबा ने देखा और खामोश रहे। तीसरा दिन आया, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा, एक आदमी मस्जिद में आने वाला है, वो दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता किया है। दो सहाबी उठे और उस सहाबी के पीछे पीछे चलकर उसके घर के चौखट पे पहुंचे और कहा, ऐ सहाबी, ऐ हमारे दोस्त, हम तेरे घर में मेहमान बनने वाले हैं। सहाबी ने कहा, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नु, आओ मेरे घर के अंदर मेहमान बनो। वो सहाबी, दोनों उस सहाबी के घर में मेहमान बने। पूछा, यार आने का मकसद क्या है? एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। सहाबा ने कहा, यार हम देखने के लिए आए हैं कि तू कौन सा अमल करता है। 3 दिन इमाम कायनात ने अपनी जुबान नबूवत से तुझे जन्नत की बशारत इनायत की है। ओ आओ, जोइयां उतार के रहने वालों, मैं कारी खालिद मुजाहिद साहब की मौजूदगी के अंदर मसल के हक्का अहले हदीस का एक तालिब इल्म और वर्कर होने की हैसियत से अपने अकीदे का इजहार भी करना चाहता हूं। मेरे आका सहाबी को किस जुबान से जन्नत की बशारत दे रहे हैं, जिसके बारे में हमारा ये अकीदा है, जमीन अपनी जगह से हरकत कर सकती है, आसमान हरकत कर सकता है, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, सारी कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है, लेकिन काली कमली वाले की जुबान से सारे बोलो निकलने वाली बात गलत हो सकती, ऊंची बोलो हो सकती। सहाबी ने कहा, कौन सी बशारत मिली है, तेरा कोई अमल नहीं देखा। सहाबी ने कहा, तुम्हारी तरह नमाज पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह तहज्जुद पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह रोजा रखता हूं, लेकिन यार तेरा अमल क्या है जिसकी वजह से मेरे आका ने अपनी जुबान नबूवत से 3 दिन तुझे जन्नत की बशारत और जन्नत का मेहमान कहा है। सहाबी ने कहा, अगर तुम इसरार करते हो तो फिर पूछ लो मेरा अमल क्या है। फरमाया, जब मैं सारे दिन के काम काज करके थक कर अपने बिस्तर पे आके लेटने लगता हूं,
मैं अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा के कहता हूं, अल्लाह मेरे साथ जिस किसी ने भी ज्यादती की, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरी गीबत की, किसी ने मुझे मंदा बोला, अल्लाह मैं सोने से पहले तेरे सारे बंदों को माफ कर रहा हूं। और मेरा रब भी आगे से ऐलान करता होगा, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी मखलूक और मेरे बंदों को दुनिया में माफ कर दिया है, अर्श पे बैठकर रब्बे कायनात ने तुझे माफ कर दिया है। और सहाबी ने कहा, ऐ आने वालों, मुझे हद्दुल इम्कान इस बात का मुकम्मल यकीन हो चुका है, मैं अपने भाइयों को दुनिया में माफ करके सोता हूं। मेरे इस अमल की वजह से रब्बे कायनात ने इमाम कायनात की पकीज़ा जुबान से 3 दिन के लिए 3 दिन मुझे जन्नत की बशारत दिलवा दी है। और आओ अपनी एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे आका सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे यारों और मेरी उम्मत के लोगों, जो बंदा अपने मुसलमान भाई को माफ कर देता है, आखिर तक सारे बोलो, जो बंदा अपने मुसलमान भाई को माफ कर देता है, आवाज नहीं आई, फिर बोलो, क्या कर देता है? माफ कर देता है। मेरे आका ने अपनी जुबान नबूवत से इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के बंदों को माफ कर देता है, क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात उसको जन्नत के वस्त और दरमियान के अंदर महल अता फरमाएगा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। और आओ मेरे आका के यार और मेरे आका के वफादार, जिनके बारे में हमारा ये अकीदा है कि कायनात के लोगों, रब्बे काबा की कसम है, जिसने रूए जमीन के सीने पर चलते फिरते जन्नत के सरदार देखने हैं, वो मेरे आका के पाक सहाबा को देखे। रब्बे कायनात ने उनको दुनिया के अंदर जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दिया है। मेरे आका के सहाबा ने यमन के गवर्नर समामा इब्ने उसाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा, गिरफ्तार किया और लाकर मस्जिद नबवी के सहन के अंदर एक सतून से बांध दिया। मेरे आका मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए और मेरे आका ने पूछा, समामा तेरी क्या हालत है, क्या हाल है तेरा? कहता है, अगर माफ करोगे तो अच्छा बदला मिलेगा, और अगर कत्ल करोगे तो कत्ल का बदला लेने वाले आ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, समामा मेरे चेहरे की तरफ तो देख। कहता है, जा मैं तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखता। फिर मेरे आका ने कहा, समामा मेरी बस्ती की तरफ ही देख ले। कहता है, मैंने रोम को देखा, इराक को देखा, ईरान को और यमन को देखा, जा मैं तेरी बस्ती को नहीं देखता। मेरे आका ने फरमाया, साहबा ये हमारी गुस्ताखियां करने वाला और हमें अच्छा ना समझने वाला गवाह बन जाओ कि किसी सहाबी के घर से समामा का खाना नहीं आएगा। समामा के लिए मस्जिद नबवी में अगर खाना आएगा तो 2 जहानों के इमाम मोहम्मद के घर से आएगा। मेरे आका ने फरमाया। दूसरे दिन आए, फिर वही जवाब। तीसरे दिन आए, फिर आए। मेरे आका ने फरमाया, यार समामा जा तू हमारी बस्ती के अंदर भी रहकर ना पसंद नहीं करता, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, मेरे चेहरे को देखना नहीं चाहता, जाओ सहाबा हमने इसको माफ कर दिया है। और फरमाया, सहाबा ये बड़ा आदमी है, यमन का गवर्नर है, आज इसको ऐसे अलविदा नहीं करना, बल्कि मदीना से बाहर जाकर इसको इज्जत के साथ अलविदा करना है। सहाबा छोड़ने गए, काफी रास्ता तय करने के बाद उसको छोड़ा, सर पर दौड़ा, घोड़े को दौड़ाया और काफी सफर करने के बाद इसने एक बाग देखा, वहां पर टेक लगा के बैठा और दिल में ख्याल आया, सुमामा वो नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन नबी, तू उसकी गुस्ताखियां करता रहा, तू उसको बुरा कहता रहा और वो तुझे अपने घर से खाना खिलाता रहा और फिर उसने तुझे माफ कर दिया। इतने अच्छे इखलाक वाला बंदा, सारे बोलो, झूठा हो सकता नहीं हो। वहां से वापस आए, मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, निगाहों को उठाया, देखा समामा आया है। फरमाया, समामा तुझे हमने छोड़ दिया था, फिर क्या लेने आए हो? समामा ने जवाब दिया, आका मुझे अपना बना के छोड़ दिया था,
क्या असीरी है, क्या रिहाई है। मैंने छोड़ा आपको तब था जब तेरी जुल्फों को देखा नहीं था। अब समामा ने तेरी जुल्फों को और चेहरे को देख लिया है, और समामा तेरी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी के लिए तेरी जुल्फों का असीर हो गया है। मेरे आका ने जो माफी का ऐलान किया था, रब्बे कायनात ने उसका सिला ये अता किया। आज समामा यमन का गवर्नर मेरे आका के इखलाक और माफी का ऐलान सुनकर इमाम कायनात का मुरीद बन जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेता है। और मुझे वो वक्त भी याद आता है जब 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हुआ और 2000 मक्के के काफिर सामने खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, और मुझसे किस बात की तवक्को करते हो? कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इससे माफी की उम्मीद रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा पर जुल्म याद है, और तुमने मेरे बिलाल पर जुल्म किए मुझे याद है, और तुमने सैयदा जुन्नैरा की आंखों के अंदर सुलाखों को फेरा मुझे याद है, मेरी सुमैया के टुकड़े किए मुझे याद है। लेकिन ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। बल्कि एक सहाबी ऊंची जगह पे खड़े होकर कहने लगा, ऐ कुफारे मक्का, अल यौम यौमुल मलहमा, मक्का वालों आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे आका ने जब इस बात को सुना, वो रहमतुल्लिल आलमीन नबी अपनी जुबान से फरमाने लगे, सहाबी इस तरह ना कह, आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, बल्कि तू कह कि आज अल यौम यौमुल मरहमा, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि आज भी तुम्हारे ऊपर रहम करके तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और फिर रब ने, मेरे आका ने जब 2000 मक्का के काफिरों के लिए माफी का ऐलान किया, फिर अल्लाह ने नतीजा क्या अता किया? 2000 के 2000 काफिर वहां पे खड़े होकर कलमा पढ़ लेते हैं और ताजदार मदीना के गुलाम बन जाते हैं। अभी जब मैं मस्जिद में आ रहा था, मेरे भाई ने एक बात कही, और वो बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और कारी खालिद मुजाहिद साहब की मौजूदगी में आज पहली दफा तकरीर कर रहा हूं। डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी अहले हदीस यूथ फोर्स का पैगाम मैं इस बस्ती के अंदर सुना के जाऊंगा। आज गजा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ यहूदी तोड़ रहा है। आओ मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे, मरकजी जमीयत अहले हदीस की छतरी तले यूथ फोर्स के बैच अपने सीनों पे लगाकर जिहाद का ऐलान करते रहेंगे, और फौजे पाकिस्तान के कंधे के साथ कंधा मिलाकर, पैर के साथ पैर मिलाकर इंशाअल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के हक में अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह यहूदियों का मुकाबला करते रहेंगे। आवाज नहीं कर, सारे कहो इंशाअल्लाह। और फलस्तीन के मुसलमान नहाते नहीं है, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम उनके साथ खड़े हैं। आज पूरी दुनिया के मुसलमान उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह जहां पे फलस्तीनियों का जहां पर उनका पसीना गिरेगा, मुसलमानों का इंशाअल्लाह वहां पे खून गिरेगा। और एक आखिरी बात, वादा करो कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर मिर्जाई पंजे गाड़ रहा है। मेरे आका की खत्म नबूवत का दुश्मन और आका की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाला और गुलाम अहमद कादियानी की ज़ुर्रियत आज पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। कभी लाहौर के अंदर, कभी सफदराबाद के अंदर और कभी शेखुपुरा के अंदर मिर्जाई नापाक जसारतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह मिर्जाइयों का मुकाबला करता रहेगा और काली कमली वाले की खत्म नबूवत के परचम लहराता रहेगा।